अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। मैं आपका होस्ट क्यू और मेरे साथ मेरा को-होस्ट ए What's up, guys? आपके लिए हाज़िर हैं। तो today we'll be discussing a couple of things which we hope becomes the format of our podcast। जैसे-जैसे हम आगे जाएँ हम देखेंगे कि पॉप कल्चर के अंदर लेटेस्ट चीज़ें क्या चल रही हैं एंड देन वील ट्राई टू कनेक्ट इट टू द ब्रॉडर क्वेश्चंस जो उससे रिलेट होते हैं। क्योंकि ए जो है वो भी एक सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मैं एक पीएचडी डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक हमारे पास वो टूल्स होंगे कि हम ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर भी चीज़ों को असेस कर सकें ताकि आपको एक नई इनसाइट मिले जो आपको और नहीं मिल सकती सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ के। That's an absolutely great intro to this. I mean, we will try our best to remain like on the more factual side of things. We'll try and back up whatever we're saying with more with citations and publications to essentially back up our opinions and our takes on certain things. At the end of the day, we always have to preface the fact that this will always be an opinion, and opinions can differ, but at the end of the day, we're trying to hope that we're bringing another fresh eyes on some worn tracks that are essentially thought run through this place. हाँ, और ऑनेस्टली Hopefully a more intellectual take on things, but I mean, we're gonna have some fun with it as well. या क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करना भी बहुत ड्राई हो जाता है, तो वी होप कि हमारे साथ आप इन चीज़ों के थ्रू जाते हुए एन्जॉय भी करें थोड़ा-सा। और एज़ ऑलवेज़ फीडबैक जो है वही बताएगी हमें कि हम कैसा कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव। सो आई थिंक विद दैट हम डाइव कर सकते हैं सीधा कंटेंट के अंदर। So, first off, we're going to talk about, I think, three things today. Firstly, we're going to talk about ourselves, what we are, where we come from, etc. etc. दूसरी बात जो हम लोग बात करेंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अपने इंटरेस्ट, हॉबीज और साइड चीज़ों के बारे में, जस्ट so that you can get to know us a bit better. And thirdly, we're going to all off with a bit of our backgrounds. I am A. I essentially thought I have a background in medicine. I am a graduate of MBBS and hopefully going to pursue that further into a residency abroad, most probably. And for now, we're right now chilling. I mean, we just decided to make this podcast on a whim. What about you, Gil? What are you up to nowadays? हाँ, आई एम क्यू। मैंने भी लम्ब से अपनी अंडरग्रेड डिग्री की फ़िज़िक्स के अंदर। उसके बाद आई डिडन्ट do a job or anything, came straight into a PhD right before COVID hit. So I've been studying physics for like 4 plus 3, 7 years now. So I'm more than halfway through my PhD. I'm in the US, so a bit ahead of A in getting here. But yeah, I think I want to see this through. I want to work in quantum computing आगे जाके किसी बड़ी गूगल या आईबीएम टाइप कंपनी के साथ, पर मे बी अ स्टार्टअप इफ समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग देयर, पर academia doesn't seem to be my future for now. Unpacking that a bit, why do you think you would not want to pursue like a scene in academia per se? I think multiple reasons हैं, because first of all, um, आई डोंट थिंक मैं उतना स्मार्ट हूँ कि मेरी वो लॉटरी लगे जो प्रोफ़ेसरशिप की होती है। पर चलो सपोज़ मैं उतनी मेहनत कर लूँ और पेपर्स पब्लिश कर लूँ और वो लगा लूँ जो स्वेट आपको 8-10 साल करनी पड़ती है। लाइक देयर्स सो फ्यू फैकल्टी पोज़ीशंस, पोस्टडॉक्स डोंट पे एनीथिंग। अम, तो मतलब a lot of the development going on the quantum computing side is going on in industry. They have better systems, better resources. They're much well funded. So even if you want to do research, industry is a good place to do that. If you want to go into a more managerial side of things, वहाँ पे भी बहुत opportunity है. So I guess it's a mixture of opportunity and not wanting to stay in academia. Uh, so yeah. Um, so
What about you though? I remember that you weren't always set on continuing your medical studies. What changed over time? I Why do you mean, want to continue it? I always had like a general direction that I wanted to go in, and that was more or less towards academia per se. But was trying to just find the most convoluted ways of getting my foot in academia, which is not exactly smart. But I always wanted to have some foundational like degree, so to say, so that I can fall back on it in case the academia thing didn't work out. But उसको छोड़ते हुए जो है ना एकेडेमिया के अंदर मेरा बहुत शौक है आई लव essentially तौर पर researching and I love learning about new things but there's like a limitation to essentially तौर पर academia कि वो चीज़ें आपको freely तौर पर pursue नहीं करने देते जो आप खुद करना चाहते हैं more or less आपकी guided essentially तौर पर research होती है like you don't have carte blanche to do whatever you want which is kind of the direction that I wanted to go into. At least not for like the first 10 years you're in Exactly. Like, I academia. mean, I'm going to be like a 50-year-old, like, old grandpa by the time I'm going to have carte blanche to do whatever I want. And by then, I'm going to be, like, way too jaded to do anything cool. तो उसको छोड़ते हुए जो है, then I essentially तौर पर decided to go into medicine. And I wanted to really understand the neuro side of medicine. So that's most probably the direction I'm headed in, I think, overall. But for now, we'll see where life takes me from this point onwards. हाँ, इतना कुछ होता है कंपेयर करने के लिए क्योंकि व्हाइल एकेडेमिया में हम सबका यही ख्वाब होता है कि हम रिसर्च करें, नई चीज़ें डिस्कवर करें। पर एक एट सम पॉइंट आप देखते हो कि ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। लाइक फॉर मी पर्सनली मेरे पास एक फैमिली है सपोर्ट करने को। आई वांट कि मेरे बच्चे हों, मैं उनको भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दूँ और रेज़ करूँ और आई फील लाइक मेरे लिए बेस्ट डिसीजन यही होगी कि मैं एकेडेमिया में ना रहूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे क्यूरियस करती हैं वो देयर्स प्लेसेस दैट पे मी अ लॉट बेटर टू डू देम तो 'cause हाँ, और एक एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लाइक एज़ एन अंडरग्रेड आपको काफ़ी बताया जाता है कि एकेडेमिया बड़ा चिल है, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल है, ये वो। पर वन्स यू स्टार्ट वर्किंग विद योर प्रोफेसर्स यू रियलाइज़ के they are overworked, they are paid half of what they should be given their experience and skills, and the like you still work like 15 hours a day but you just get to choose which 15 hours they are। पर ऐसा नहीं है, काम नहीं होता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एकेडेमिया में भी। But overall, उसको छोड़ते हुए जो है ना, like क्या कहते हैं, like that's kind of what turned me off of academia as well. And it's so काफ़ी insane that like people on like the literal bleeding edge of all of this research are like paid like absolute peanuts. सही बात है, ऐसा ही है। और अम, वही कि जितना एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से बहुत अंडरपेड होते हो एंड आई मीन बिकॉज़ लाइक श्योर होती है फ्रीडम डेफ़िनेटली। इंडस्ट्री में काफ़ी नैरो होता है जिस एरिया में आप काम करते हो। मेरे पास कुछ लास्ट वीक एक टॉक देने आया था एक बंदा हू जस्ट जॉइन्ड यूनिवर्सिटी एज़ अ प्रोफ़ेसर। उसने पहले आईबीएम में काम किया था क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। तो उसका यही था लाइक वो कहता है मैंने पे कट लिया है क्योंकि जिन लोगों की तरह मैं बनना चाहता हूँ वो प्रोफ़ेसर्स हैं। तो आई एम लाइक सही है, आई विल पुट इन माय 10-15 इयर्स एंड आई विल गेट देयर, इट्स वर्थ इट टू मी। लेकिन कहता है कि आई कैन सी के काफ़ी वैल्यू है इस बात में कि यू गेट अ वर्क लाइफ बैलेंस इन इंडस्ट्री। लाइक देयर्स सेट बाउंड्रीज़, देयर्स सेट हायरार्कीज़ और देयर्स अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी दैट देयर इज़न्ट इन एकेडेमिया। तो आई डोंट थिंक ये कहना फ़ेयर होगा कि एक बेहतर है दूसरे से, क्योंकि कई लोग चूज़ करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में एंड वाइस वर्सा। पर आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि आपको क्या चाहिए। और आई नो मेरी जो पार्टनर है उसके लिए प्रोबेबली बेहतर सूटेड है एकेडेमिया, लेकिन आई नो मेरे लिए नहीं है। और आई थिंक वही मैटर करता है ज़्यादा। I mean, the kind of aim or direction that you're going for is like the work-life balance is essentially thought much better in industry versus academia. हाँ,
But like, what exactly is like the main driving factors जो तुम कहते हो कि तुम्हें फील होता है कि तुम एकेडेमिया के से पुश हुए हो ज़्यादा? मेनली अपॉर्च्युनिटी, मतलब I would love to continue what I'm doing if I was promised more money, पर if it comes down to it, it's just money. और अगर मुझे किसी अमेरिका के गाँव में जाके, जहाँ मैं अकेला ब्राउन इंसान हूँ, वहाँ पे मुझे पोस्ट डॉक्स करने हैं 6-7 साल, लाइक फक दैट मतलब। आई मीन लाइक, तुम बात तो गलत नहीं कर रहे। सारे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज जो हैं लाइक लिटरली गाँव के अंदर बैठे हुए हैं हर जगह, एंड हाँ, वहाँ पे ही बस तुम कंट्री लाइफ को एंजॉय करते हुए बस बैठे रहते हो। बट आई मीन लाइक हाँ, इट्स इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि लाइक तुम हाँ, स्लो कुछ लोग लाइफ को खुश थोड़ा सा होते हैं। एंजॉय कर सकते हो। कुछ लोग खुश होते हैं उसके अंदर, हाँ। मतलब मैं अभी भी जहाँ हूँ वो एक छोटा टाउन ही है और मैंने एन्जॉय कर लिया 2-3 साल, पर मतलब आई वांट टू एक्सपीरियंस मोर थिंग्स। और अगेन वही कह रहा हूँ ना, वैलिड डिसीजन है जाना भी, आई एम जस्ट सेइंग मेरे लिए नहीं है। हम्म, आई कैन सी दैट। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि डाइवर्सिटी का क्या सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे, लाइक अमेरिका वगैरह के अंदर? कि लाइक आई मीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिसिन, मैं ये तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे मेजॉरिटी रिसर्च पेपर्स वगैरह जो हैं वो एक ए रिसर्च होते हैं और दूसरे बी, लाइक वो जो सैम्पल साइजेस वगैरह जो लेते हैं वो लाइक इट्स गियर टुवर्ड्स वाइट मेल पॉपुलेशन एसेंशली तौर पर। तो लाइक डू यू फील कि लाइक उस तरह सिमिलर सिचुएशन है कि क्या कहते हैं लाइक देयर इज लाइक अ सिमिलर काइंड ऑफ गेट कीपिंग काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन वहाँ पे? यार डेफ़िनेटली है, मतलब काफ़ी लेवल्स के ऊपर है, पर अ, सो लाइक रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है, लाइक जस्ट अ फ्यू डेज़ अगो, जिसमें है कि 20% ऑफ जो प्रोफ़ेसर्स हैं यूएस के अंदर टेन्योर्ड, वो 8 यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए हैं। तो लाइक वो बंदे हैं, वाइट हैं, और जो जिसको जानता है उसके सर पे काम चलता है, तो वो बस रीइन्फोर्स करती हैं जो इनइक्वालिटीज़ और इनइक्विटीज़ होती हैं। वाइट लोग एक-दूसरे को जानते हैं, वो रिकमेंडेशंस लिखते हैं, वो पहुँच जाते हैं जगहों पे। हम बाहर से आते हैं, हमें ऑब्वियसली अपहिल जाना होता है काफ़ी, हमारी यूनिवर्सिटी का किसी को पता नहीं होता, तो वी एंड अप विद अ पूल ऑफ पीपल हू आर लेस क्वालिफाइड देन वी आर समटाइम्स, लेकिन उनके पास कनेक्शंस होते हैं, तो वो आगे होते हैं। फिर लाइक रिसर्च के अंदर, फिज़िक्स के अंदर तो काफ़ी बड़ा मसला है कि औरतों को कोई जगह नहीं मिलती, तो रेस को तो सेट असाइड करो, इवन जेंडर के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ हैं। अ, डिस्करेज किया जाता है, पाकिस्तान में तो हमें पता ही है किया जाता है, इवन यूएस के अंदर इतना मसला है, लड़कियों को मिडल स्कूल से ही डिस्करेज करते हैं कि वो फिज़िक्स, मैथ्स की तरफ जाएँ, उनको बायो और मेडिसिन की तरफ पुश किया जाता है, या आर्ट्स की तरफ। अ तो लाइक आई थिंक बहुत लेवल्स के ऊपर ये मसले हैं, और डेफिनेटली फिज़िक्स के अंदर सिंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी एक वर्कफ़ोर्स को करते हैं, कंसिस्ट ऑफ, तो आई थिंक एशियन लोग, इंडियन लोग काफ़ी रिप्रेजेंटेड हैं। आई डोंट हैव द नंबर्स टू से एग्ज़ैक्टली बराबर हैं कि नहीं, लेकिन आई थिंक जेंडर की बेस के ऊपर काफ़ी बड़ा मसला है फिज़िक्स के अंदर, और आई वुड लव अगर कोई अ, फीमेल फिज़िसिस्ट आके हमारे से बात करना चाहे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। I mean, that would be totally dope, वैसे कि like you know getting some हाँ, female physicist on board talk with us. But I mean, like तुमने जिस तरह मेंशन किया पहले कि कि पाकिस्तान में भी वो ठीक है, जेंडर इक्वालिटी और वो सारा कुछ जो है वो मसला है, मगर लाइक बाहर भी जो है बहुत एक्सट्रीमली प्रेजुडिस एग्जिस्ट करता है स्टेम फील्ड्स में टुवर्ड्स वुमेन एंटरिंग देम। डेफ़िनेटली हाँ। हाँ, आई मीन बियॉन्ड जस्ट मेडिसिन, क्या कहते हैं मेडिसिन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि देयर इज प्रोबेबली an equal footing to maybe like क्या कहते हैं an equal amount of representation on both sides, but even that was like a predominantly male dominated प्रोफेशन। अब लाइक अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है, अभी लाइक कोई रिसेंटली कोई 10-15 साल के अंदर थोड़ा सा ये शिफ्ट आया है ऑफ मेडिसिन। हाँ, बट क्या कहते हैं इन साइंस एंड लाइक स्पेशली तौर पे इन फिजिक्स, लाइक आई could not even physics, like even in all of the other STEM fields, like I can see like women are discouraged quite heavily from like entering those fields, like from the very beginning, from like the outset even. हाँ। नहीं, आई मीन ये, आई थिंक इट डिज़र्व्स लाइक अ सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स ऑन इट्स ओन, 'cause आई हैव अ फ्रेंड जिसने जर्मनी से अपना मास्टर्स किया था, और
लाइक जॉब की थी वहाँ पे कुछ अर्सा, और वो कहता है कि यूएस जो है इस लिहाज से ज़्यादा इंक्लूसिव है कि आपको ना हायर अप इन अ कॉर्पोरेशन आपको औरतें मिलेंगी, आपको लाइक नॉन वाइट पीपल मिलेंगे, लेकिन यूरोप के अंदर आपको एक बहुत हेवीली गेट कीप किया जाता है हायर लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वाली पोजीशंस, और वो सिर्फ वाइट यूरोपियन बंदे होल्ड करते हैं। तो विदाउट लुकिंग एट द नंबर्स अगेन कुछ कह नहीं सकते, पर I mean, आई थिंक देयर most इज of this, लेयर्स टू इट। there are obviously layers to this, and there's much more हाँ, nuance to it. But like हाँ, hearing पर someone's experiences essentially thought with this situation would like shed a whole lot of light on the situation. I mean, even your own हाँ, हाँ, experiences essentially तौर पर हम लोग को वो थोड़ा सा light shed करते हैं क्योंकि you're like in the system right now. हाँ, डेफिनिटली। आप मतलब इवन पाकिस्तान से आते हुए यहाँ पे द फैक्ट कि मेरे पास फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे लिए इतना आसान कर दिया था उस प्रोसेस ने, कंपेयर टू मेरा एक रूममेट जो अ, गाना से आया था। अ, उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने मुझे मिल रहे हैं, लेकिन उसने अपना गाँव में उसकी फैमिली जो है वो एक कच्चे घर में रहती थी, उसने पक्का घर बनवाया है अपने थोड़े से पीएचडी स्टाइपेंड से। और लाइक वही है ना, जिनके पास प्रिविलेज है, उनके पास सुकून है टाइम है पढ़ने का, चीज़ें सीखने का। जिन लोगों के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन्स हैं, लाइक वो इवेंचुअली दे ईदर गेट वीडेड आउट, या वो अपने आप को घिसा लेते हैं काम कर के टू सपोर्ट एवरीवन एंड स्टिल कंटिन्यू फिनिशिंग देयर डिग्री। I तो mean, that's a वो बिल्ट definite इन है thing, ना? सारी। I mean, हाँ, वो एक हाँ, like unnecessary burden essentially तौर पे place हो जाता है ना किसी के ऊपर. Like someone has to worry about the fact कि their family is living inside of like a house that's like not structurally sound per se. So like हाँ, क्या कहते हैं, that's obviously like a huge burden on someone, and it also these people जो क्या कहते हैं who also go abroad and क्या कहते हैं bring back stipends and like क्या कहते हैं remittances like essentially तौर पे become a lifeline for that family. हाँ, एग्ज़ैक्टली। प्लस मतलब पर मेरा मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मेरी पीआई एक औरत है, मतलब वो बहुत ही मेहनती है, वो अकेली ही रही हुई है इन दिस फील्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अब जाके ज़्यादा औरतें आना शुरू हुई हैं पिछले 10-20 साल में, पर अपने टाइम में वो काफ़ी एक यूनिक थी। तो मतलब थोड़ा डिफरेंट है एक्सपीरियंस, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सोच के मैं इसके ऊपर कभी बात कर सकता हूँ। आई वुडन्ट वांट टू से थिंग्स जो, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए एक्सपीरियंस काफ़ी आसान है। आई नो मेरे अपने डिपार्टमेंट में लोग जो छोड़ के चले गए हुए हैं, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा हुआ है, तो आई वुडन्ट वांट टू स्पीक फॉर एवरीवन। I mean, अ, obviously everyone's ऐसे हाँ, experiences are going to be different, and like हाँ, how they essentially तौर पे end up on the same platform as you or the same level as you, क्यों their journey is हाँ, going to इफ be entirely 'cause different comparison to that. हाँ, क्योंकि इफ आई लुक एट इट, मुझे नहीं फ़ील होता कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी इंटरनेशनल लोग हैं, लड़कियाँ भी बराबर ही रेशियो में हैं। लेकिन आई ऑल्सो नो कि अगर आप हिस्टोरिकली नंबर्स देखो हमारे डिपार्टमेंट के, तो अ, जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैं, जो लड़कियाँ हैं, पीपल ऑफ कलर हैं, दे आर मच मोर लाइकली टू लीव, प्रोफेसर्स आर लाइकली टू लीव। तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन दैट वी डोंट सी, लेकिन लोगों को जाना पड़ता है उसके थ्रू। तो मतलब एज़ फार एज़ गिविंग क्रेडिट, लाइक दे डू पुट इन एफर्ट, दे गिव यू द रिसोर्सेज़, उन्होंने कमिटीज़ बनाई हुई हैं। हम लोग भी रहे हुए हैं प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन कि ये मसला है क्या, दे वांट टू फिगर इट आउट। पर आई डोंट थिंक कि जस्ट सेइंग कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन है मेक्स इट सो। काफ़ी एफर्ट लगती है इन चीज़ों को फिगर आउट करने में। I और mean, आई थिंक जो जो अपना इमेज प्रोजेक्ट करता है यूएस hmm. अपने मीडिया के थ्रू, आई थिंक वो थोड़ा डिसइंजेनियस होता है। I mean, तुम इस तरह से देख सकते हो ना कि एक तरफ से जो है ना तुम्हारे पास वो एक फॉर एग्जांपल लाइक डिस्क्रिमिनेशन के लॉज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ना, यू कैन लीगली तौर पर इन्फोर्स डिस्क्रिमिनेशन के लॉज है ना कि लाइक क्या कहते हैं कि हुँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है लाइक एक सर्टन ग्रुप के अगेंस्ट या फिर एक सर्टन टाइप ऑफ पीपल के अगेंस्ट है ना. तो हाँ, दैट्स वन थिंग है ना.
but truly believing that and not like soft essentially तौर पर discrimination करना साथ में कि like अपनी actions के through वो हुँ, फिर उसको ख़त्म करना तो वो like societal change essentially तौर पर मांगता है ना, and that essentially तौर डेफ़िनिटली पर takes time काफ़ी कि टाइम वो लगता है। mindsets change होए, attitudes change होए towards like इस तरह की चीज़ों के towards, तो हाँ, वो भी जो है like I guess आहिस्ता आहिस्ता से maybe with time resolve होते रहें, but like having those laws in डेफ़िनिटली the first होएँगे, place I guess अच्छी बात है overall. है तो सही। हाँ, हाँ, प्लस लोग काफ़ी फँस के कब करते हैं इसके ऊपर क्या मतलब आई थिंक इट कनेक्ट्स। हमें सिर्फ़ यूएस की बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी पाकिस्तान में इतने बुरे फ्लड्स आए हुए हैं, लोग जो हैं परमानेंटली डिस्प्लेस हो गए हैं ना, अगर 2-3 महीने तक उनके घरों से पानी नहीं निकलना और वो अब शहरों को जा रहे हैं। शहरों में लोग लगे हुए हैं कि ये कहाँ से उठ के आ गए हैं, मतलब ये गंद मचाएँगे, क्राइम लेके आएँगे और आई थिंक वो बहुत नैरो तरीका होता है देखने का। आई थिंक थोड़ी टेंशन्स आती ही हैं जब इतनी सडन सोसाइटल चेंजेस हों, लेकिन आई थिंक इन द लॉन्ग रन लोग एडजस्ट कर जाते हैं और इट कैन बी यूज़फुल, प्रोडक्टिव इवन। I mean, definitely. Always like I mean, I can't find the exact paper to quote here, but there was a study essentially thought or carried out जिसके अंदर उन्होंने वो कंपनीज की एनालिसिस की थी along the lines of how much जितनी diversity उनके पास exist करती है वो उनके companies के अंदर, and they always found that companies that have a more diversified both in gender in race and क्या कहते हैं even in like क्या कहते हैं sexuality even, वो भी जो है उसकी diversification जो है it lends a huge amount towards one productivity and to like improvements in essentially तौर पर functioning of that company, because when you have essentially तौर पर differing views coming into like the forefront, so you can essentially तौर पर look at the same problem from much more different perspectives and understand the डेफ़िनिटली। problem क्या कहते हैं much better. हाँ, मतलब मेरा एक दोस्त है यहाँ पे वो गूगल में काम करता है, तो वो मुझे बता रहा लाइक ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है लाइक वो एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं लोगों के अंदर। दे डोंट जस्ट हायर पीपल कि आप आओ जाके कोडिंग करो। दे कि कोई अनरिलेटेड एक्सपीरियंस है, मैं एक फिज़िसिस्ट हूँ, मैं जाऊँगा गूगल के पास, वो मुझे रख लेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो स्किल्स हैं, वो ऐड करें टू द ग्रुप दैट दे ऑलरेडी हैव। तो लाइक अम, उ द डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ को वैल्यू करना तो डेफ़िनिटली मैंने उसके एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं यहाँ पे व्हिच इज़ रियली नाइस। और अगेन चैलेंज होता है, इट्स नॉट के जस्ट बाय पुटिंग पीपल टुगेदर वो सही हो जाएगा। मैं जब यहाँ पे आया था मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, मेरी पीआई भी खातून है, मेरी जो पोस्ट डॉक थी जो लीड कर रही थी उसको वो भी लड़की थी। तो मतलब मैं तो पाकिस्तान से उठ के आया हूँ सीधा, मुझे तो लड़कियों को इंटरप्ट इवन तो मेरी बहन मेरी बड़ी बेइज़्ज़ती करती है इस पे, लेकिन मुझे आदत थी इंटरप्ट करने की, इजाज़त लिए बगैर। तो मैं उसे बार-बार इंटरप्ट कर रहा हूँ पहली कुछ मीटिंग्स के अंदर, तो उसने मुझे सुना दी। उसने कहा, "चुप कर लाइक बी क्वाइट एंड लेट मी फिनिश।" और लाइक मतलब सीखते हो आप उस तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ, अगर आपने अपने अलावा किसी तरह के लोगों से इंटरैक्ट ही नहीं किया, तो आपको फिर आपकी लर्निंग की एबिलिटी और अपॉर्च्युनिटी इतनी डिमिनिश हो जाती है एंड जस्ट बाय having that chance, like I got like she was good enough to continue working with me और I मेरी mean, I पीएचडी totally थीसिस agree उसके with ऊपर whatever बन you're. गई। I mean, I totally agree with what you're हाँ, saying. I mean, like क्या कहते हैं, just having that essentially thought experience of experiencing like other people's like perspectives on things and how different they are essentially thought from your own standpoint, like offers a huge amount of insight into how you work and how other people work as well. हाँ, नहीं दैट्स डेफिनिटली ट्रू। अब इसकी मैं दूसरी साइड के बारे में भी पूछना चाहूँगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल डिग्री करते हुए तुम्हारा क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा हुआ है? क्योंकि आई नो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्कूल जाओ तो आप एक डिफरेंट सेट ऑफ लोगों से इंटरैक्ट करते हो, लेकिन तुम एक प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट कॉलेज गए थे, तो वहाँ पे I mean, तुम्हारा क्या definitely हाँ तुम like क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस रहा था? हाँ मैं थोड़ा सा elaborate करता हूँ उस पर, क्या कहते हैं, मैं generally speaking जो हूँ like I came from
a relatively like well-off background. I mean, just the fact that we are running a podcast is like testament to that. तो क्या कहते हैं, उसको चलाते हुए आगे जो है क्या वो अब मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, आगे से जो है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीधा चला गया था। तो ऑब्वियसली व्हेन यूर इन अ प्राइवेट स्कूल तुम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ लोगों के साथ essentially तौर पे इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड बाद में जो जब तुम गवर्नमेंट कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे भी तुम एक कम्प्लीटली फ़र्क वो स्ट्रेटा ऑफ लोगों के साथ डील कर रहे हो। अ, तो इट वाज अ जेन्युइनली लाइक क्या कहते हैं अन एनरिचिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए। आई मीन मेरे लाइक बहुत ज़्यादा लाइक व्यू पॉइंट्स वगैरह जो है वो बदले हैं थ्रू आउट दिस इंटायर टाइम। एंड क्या कहते हैं, it is 100% क्या कहते हैं a better like way of looking at the world than the essentially तौर पर the viewpoint that I had initially तौर पर। What was the viewpoint you had initially तौर पर? Like I can like I can very much easily say this like क्या कहते हैं शुरू से लेके अब तक कि क्या कहते हैं I used to be very egalitarian, very क्या कहते हैं वो uh, Liberal. हाँ, I used to be like a neo-lib, you could say, हाँ, pretty much. Like I was like, you know, ये capitalism is good, है ना? Like लंडे के लिबरल आ जाते हैं. लंडे के लिबरल कसम से। वो मेरा बहुत ज़्यादा ये व्यू पॉइंट था कि लाइक यू नो कैपिटलिज्म इज राइट। आई मीन ऑब्वियसली लाइक इट्स अ मेरिट बेस्ड सिस्टम, सो देन व्हाई इज इट लाइक व्हाई वुड यू लाइक क्रिटिसाइज इट, है ना? तो देन essentially तौर पर over time I began to look deeper into its workings and try to understand what's going on actually behind the scenes, and you know how essentially तौर पर like it's very much a game of chance okay, like you end up in with a good spawn point so to say, है ना? Hmm. तो working off of that basis, I mean, I can say like literally almost everyone who was in that government college was probably much more deserving of I ever was. They हाँ. 100% deserve it more than me. And क्या कहते हैं, like the fact that they managed to even like that I even managed to like not even do better than them taking advantage of my privilege, but I ended up on the same platform to them is like a testament to their capacity and क्या कहते हैं, their capacity for like enduring and also like persevering and going beyond the circumstances and the cards that they were dealt with. हाँ, और अगेन अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते ही ना पाकिस्तान में, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो हैं उनके पास मौका भी शायद ना होता Exactly. उन उधर पढ़ने का. Exactly, and I'm 100% for क्या कहते हैं having more government institutions इस तरह से कि like जो subsidize करें education को, because I mean very easily you can look at the fact that you know there's like two or three mechanisms of essentially thought or social mobility in our essentially thought in our society. One is हुँ. probably education, the other is luck, that you luck out and manage to establish a business somehow and it will seem हुँ. and it pans out, and three is like you either marry rich और इनहेरिटेड or वेल्थ inherited, बेसिकली. huh? You can also हाँ, inherit it वो as well. I mean that's एक already ही you're बन already जाता rich है. to begin with at this point when वो luck हाँ, की बात है। हाँ, तो इस तरह से like making हाँ. education essentially तौर पर like an easily accessible route for social mobility is like 100% like the right way to deal with it. Topic for another day. This is हाँ, we are too uneducated to talk बहुत about this right now. बहुत फैल जाएगी वो हाँ, बहुत फैल डिस्कशन. जाएगी बात। चलो हम लोग को आई गेस सेगवे कर जाते हैं from this point onwards to like our interests and hobbies और इस तरह टाइप चीज़ें, and why you would even want to hear us as people. आ जाओ। हाँ, मतलब आई थिंक हम दोनों टर्मिनली ऑनलाइन ही काउंट करेंगे. ए जो है वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही है इस एंड पे, क्योंकि मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा मारना होता है दिन में घर पे, बर्तन धोने होते हैं, वरना कोई इतना फ़र्क नहीं है. पर हाँ, मतलब काम के अलावा थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी शुरू की हुई है आजकल. अ, उसके मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, यूजुअली नॉन फ़िक्शन, पर मुझे रिसेंटली थोड़ी वैल्यू फ़ील होना शुरू हुई है फ़िक्शन की भी. अ, उसके अलावा I want to हाँ, like kind of butt in on this. The fictional, sorry, the non-fiction variety जो है ना, वो
इतना मुझे लाइक पिस ऑफ करता है ना, लाइक मैं लिटरली बोर होके सो जाता हूँ कसम खुदा की। लाइक जेन्युइनली लाइक यार, लाइक मैं एक बंदे की स्टोरी सुनना शुरू होता हूँ, इट्स लाइक ओके सही है सही है सही है, और मैं फिर सो जाता हूँ उसको सुनते सुनते। लाइक आई मीन हाँ। it's I understand the value and I understand the like क्या कहते हैं Mhm. the necessity for having non-fiction, but like make it slightly entertaining. I mean like I agree. seriously, if मतलब you मैं ज़्यादा manage to like क्या कहते हैं वो to get streamers or like someone like who is like an absolute Norman है ना, and get him to like or her to like essentially तौर पर narrate history in like the most chillest way possible, है ना, you will see हुँ, people learn about history like all over, like it would be just astronomical, like the escalation in how much हाँ, people know in हाँ। history. मैं बिहाइंड द बास्टर्ड्स जो है वो सुनता ही इसलिए हूँ, क्योंकि वो इतने मज़े से बता रहा होता है, उसको एंटरटेनिंग बना के। I mean, even on the more slightly commercial end of this, I mean, there was like a series, I forget what was the name again. I think it was like Drunk Histories or something like that. ओह! हाँ, हाँ, वो मज़े की होती That थी। was that was fun. I mean, they just got a bunch of actors, told them the script, and got them extremely drunk and tried to like relate what happened. And that is like such a golden idea for education. कसम से. हाँ, नहीं डेफ़िनेटली मतलब हमारा भी प्लान यही है कि बहुत ही ड्राई कॉन्सेप्ट्स और बोरिंग चीज़ें जो हमारा फ़ॉर्च्युनेटली अनफ़ॉर्च्युनेटली हमारा धंधा ही वो है, वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा उम, एंटरटेनिंग तरीके से या लाइट तरीके से बता सकें। Genuinely. And हाँ, also like interest में चलते हुए जो है हम वो क्या कहते हैं like I'm I don't even know man, how am I going to explain this? But I love reading high fantasy stuff. I mean, I am that nerd, you could say, who has read like Lord of the Rings and all the like non-fantasy, all the high fantasy bullshit that other people like fall asleep to. मज़े की होती है मतलब मूवी की फ़ॉर्म में तो आई जस्ट ईट इट अप पर हाँ, उस इतनी बड़ी किताब है रीड करना एडीएचडी इजाज़त नहीं देता। That is very true, Asa. I can totally see that happening. I mean, like high fantasy now like just scratches a very particular itch in my brain to just like हाँ, acquire information and like catalog it somewhere and just keep track of a हुँ, huge amount of information. So it's like it like massages that part of my brain. So that's why I probably like it a lot. Other than that, we are really avid gamers. If you have not ये understood from this point, क्या कहते हैं, we love video games. We've been playing together on like a lot of FPS games mostly, and also like we've been avid single player gamers as well. कब से क्लास 9 से आई थिंक है I ना? mean, huh, I mean like probably class 9. Like I started gaming like on consoles and things like that. वरना उसके बाद जो है like after में जब मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे कि कंसोल खरीद सकूं, तो फिर मैं लाइक क्या कहते हैं पीसी पे शिफ्ट हो गया, और वो भी मैं पीसी के ऊपर जो है वो लाइक सस्ता सा पेंटियम 4 को लाइक कुत्तों की तरह बस वो आग लगी हुई है उसको और वो चला रहा है गेम मुश्किलों से मदरबोर्ड वाले ग्राफिक्स के साथ। हाँ, पीटीसीएल की पिंग्स आती थी 150 उस ज़माने ओफ, में, 200। नहीं यार उसको मिस कराओ, 400 के पिंग कसम से हम लोग खेलते होते थे। तौबा! नहीं, हाँ, सही कह रहे हो, 250-300 तो स्टैंडर्ड होता ढाई था। 300 तो हम लोग कहते थे कि यार बड़ा अच्छा सर्वर हाँ, लग गया हम लोग के लिए तो। तो वो आदत बन गई थी आगे एम करके मारने की ताकि वो लैग के साथ जब बंदा पहुँचे तो मरे। एग्जैक्टली exactly. ओफ कसम से क्या दिन थे वो। हाँ, But avid gaming fans, hopefully we might have a side channel with us gaming on it and probably some live यस। streams as well. Hopefully we also hope to transition this to our podcast live so that other people can join in, ask questions, and we can just answer them on the spot. हाँ, डेफ़िनेटली। इवन अगर इफ पीपल डिमांड इट वीडियो करना भी अच्छा आइडिया रहे। I mean, this transitions really nicely to our last topic for the day. Why are we doing this podcast even to begin with? बेसिकली हमें आई थिंक हम दोनों को ही इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट करने का बहुत मज़ा आता है, और वी थॉट कि व्हाई नॉट यूज़ आवर पावर्स फॉर गुड। इतनी अनरिलेटेड चीज़ें के बारे में पता होना इट्स नाइस, लेकिन इट वुड बी नाइसर अगर हम उसको एक
फन वे में प्रेज़ेंट कर सकें बाकी सबको। मेरे एंड पे तो यही गोल था। I mean, totally agree with you on that point. Yeah, like, aggregating information and like क्या कहते हैं, bringing it into a more happy kind of way versus like the doom and gloom जो आजकल चल रहा है हमारे इर्द गिर्द. Bringing it back, we wanted to offer essentially तौर पर a platform जो इसमें पाकिस्तान के कूल से प्रोजेक्ट्स अगर हो रहे हों, साथ में जो है क्या कहते हैं, कोई भी लाइक इस तरह वॉइस करना चाह रहा हो अपने लाइक ओपिनियन किसी एक टॉपिक के बारे में, तो वो भी हम लोग उसको डिस्कस करना चाह रहे होंगे, लाइक ब्रिंगिंग गेस्ट्स ऑन द पॉडकास्ट. साथ में जो है इन इन जनरल सकते हैं कि एग्री हम दोनों का शौक है बहुत ज़्यादा कि हम लोग इन्फॉर्मेशन सीखें, तो वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट इन द मोस्ट एंटरटेनिंग स्लैश एजुकेशनल वे पॉसिबल. थोड़े से हम लोग टेक्निकल साइड पे होंगे मगर वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू make it understandable to a wider audience. हाँ, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर हम सिर्फ़ एंटरटेन करें तो हमारे से बेहतर एंटरटेनर्स कर रहे हैं यही काम। लाइक मोरू है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, ये सारे लोग काफ़ी दे आर गुड एट व्हाट दे डू। और आई थिंक हम जो लेके आ सकते हैं समथिंग यूनिक वो यही है कि एक ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज अबाउट थिंग फॉर वन, और प्लस वी वांट कि हमारे गेस्ट जो हों वो हमारे जैसे ही लोग हों जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने करियर्स के अंदर कर रहे हैं, आर्ट्स के अंदर कर रहे हैं। तो ताकि मेबी जो यंग लोग हैं वो रिलेट कर सकें उनके साथ, 'cause इट्स नाइस टू हैव फेमस पीपल एंड लिसन टू व्हाट दे से, पर अक्सर उनका एक्सपीरियंस काफ़ी दूर होता है हमारे से। तो आई मीन ऑब्वियसली लाइक एक बंदा जो एक सक्सेसफुल हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टेड होगा फ्रॉम लाइक क्या कहते हैं देयर ओरिजिन्स सो टू से. तो इस वजह से हम लोग चाहेंगे कि लाइक जो लोग नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो अपने इन्फेंसी की स्टेज के अंदर हैं या फिर अभी हो रहे हैं कि उसके ऊपर काम, तो वो लोग हम लोग के पॉडकास्ट में आएँ और हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकें कि लाइक टू जस्ट पुट द वर्ड आउट एसेंशियली तौर पर, एंड ऑल्सो डिस्कस इन जनरल अबाउट देयर क्राफ्ट एंड व्हाट देयर डूइंग एंड क्या कहते हैं. और हम लोग उनके भी इंसाइट को एसेंशियली तौर पर इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि हम लोग उनका भी एक व्यू पॉइंट समझ सकें कि वो क्यों उस चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं जो वो कर रहे हैं. एग्ज़ैक्टली। और आई थिंक फाइनली मैं यही कहूँगा कि वी वांट कि एक अच्छी कम्युनिटी हमारे इर्द-गिर्द बने। हम डिस्कॉर्ड चैनल एक बनाएँगे फॉर पीपल जो इंटरेस्टेड हैं डिस्कशंस कंटिन्यू करने में, पॉडकास्ट से बाहर भी। और हम चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी ही हमें बताए कि किसको हम बुलाएँ, किस तरह की बातें करें। दैट दैट वुड बी गुड। I mean, that's a pretty dope way to get the word out. I mean, get people on Discord, and then वहाँ पे से जो है वो लोग आपस में vote in कर सकते हैं या फिर nominate कर सकते हैं, या फिर even people who are on the Discord can come forward and say कि I am like working in this field, yeah, I have this project essentially तौर पर going on, and I want to talk about it with you guys. That is like a एग्ज़ैक्टली। totally like dope way to start all this off. हाँ, बाकी ऑलराइट देन। like this is a Q&A podcast, तो क्या कहते हैं, तो इस वजह से लाइक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली किसी एंड पे हम लोग कैरी आउट करेंगे व्हेन आवर लाइव सेशन स्टार्ट गोइंग अप. तो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी लाइक अ फन सेगमेंट जो हम लोग दरमियान में चलाएंगे जिसमें हम लोग चैट वगैरह के साथ जो है बात कर सकते हैं. हाँ, तो आई गेस ये एपिसोड थोड़ी इंट्रोडक्शन थी हमारे बारे में, थोड़ी लाइक जस्ट अ बिट. meanderings थी। हाँ, हम लोग लाइक यू गॉट अ व्यू ऑफ एसेंशियली तौर पर हाउ बोथ ऑफ अस आर मेंटली अफ्लिक्टेड सो टू से. तो क्या कहते हैं हम लोग तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग कितने लाइक आपस में टेंजेंट्स के ऊपर निकल जाते हैं, रैंडम लाइक नुक्स में अंदर निकल जाते हैं, एंड दैट्स हाउ आवर एसेंशियली तौर पर कॉन्वर्सेशन फ्लोज विद ईच अदर. तो वहाँ से जो है हम हाँ, लोग लाइक आई मीन we essentially thought we wandered around this whole thing and then eventually turned up near the end of our podcast, and I'm not even sure कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं अब तक, और हम लोग को बाद में जाके इसको पता करना होगा कि हमने क्या कवर किया है. हाँ, कोई नहीं, वो बेहतर नोट्स हमेशा हेल्प करते हैं। Yes, yes, always have good notes. So this was the Q&A podcast. This is एपिसोड Q&A. 1। Huh? एपिसोड 1। Huh, Q&A with us.